एक सेकंड दीजिए मुझे। तो so today is JavaScript day 1. So let's jump in. So what is JavaScript? JavaScript is a scripting language used to script HTML code. तो इसका मतलब क्या है, ब्रीफ समरी है ये। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन होना है बोले तो ये जावास्क्रिप्ट एक उसका खुद का एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर से आप क्या करते, ये HTML बोले तो वेबसाइट्स बनाने का रहता। ये वेबसाइट्स बनाने का उसको अपन उसमें फीचर्स डालते। तो अब आप एम्प्टी कुछ भी, आप स्केलेटन को ह्यूमन नहीं पुकार सकते। क्यों बोले तो उसमें अभी कुछ उन्हें करने की कुछ कैपेसिटी नहीं है, उसमें उन्हें खाली खड़े हुआ रहता। आयशा सिद्दीका ओके, तो उसमें कुछ करने की कैपेसिटी नहीं रहती, उन्हें एक जगह खड़े हुआ रहता। वैसे जो अपना जावास्क्रिप्ट का मेरे साल है, जावास्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज राइट, which is used to script this HTML code. HTML कोड को आप स्केलेटन समझिए, और ये जावास्क्रिप्ट कोड उसमें फीचर्स डालता, रेडी करता उसको, उसको मूविंग के फंक्शनैलिटी डालता। आपकी वेबसाइट पे जो भी रहता, जो भी फीचर्स आते वो पूरे जावास्क्रिप्ट से आते। व्हाट इज HTML? भी मैं आपको HTML का भी एक ब्रीफ समरी दे दिया। HTML is a markup language used to make web pages. CSS is used to style this web page. जो अपन वेब पेज बनाते HTML से, this web page is only a, क्या बोल सकते हैं, web page can be complete without any JavaScript, but JavaScript is needed to make it functional. जैसा कि आपको अलर्ट सी वो डालना है तो आपको 100% JavaScript यूज करना है, otherwise your code will be nothing but it will be meaningful. There will be point in the code, but it won't have any use case. So suppose I have headphones. They only work like headphones. They look like headphones. I can see them. They are headphones. Okay. But the thing is, when I plug them into my computer, the headphones don't work. What's the point of even having headphones that function like that? Which is the exact thing of HTML. And CSS is used to style this markup, right? So after you have a functional being, so what you would like to do is you would like to put clothes on that being to make it look good, to make it look appealing to the end user. So we are not the only person looking at the website. There will be other people looking at the website as well. We use CSS to style that web page in ways people will look at it. People will be attracted to the website, and people will come in the website. They will check everything. And there are also SEO practices like this, like bounce time, people dwell time, bounce. Bounce means how fast it took people to go back. Like as soon as I come onto your website, suppose I have my website, there is a user will log on to the website, and I click it. When he goes to the website, he doesn't like it, he immediately presses the back button. The more time this bounce time is, the greater your website is. I mean, no, the greater dwell time. Dwell time meaning they scroll on your website, they look at other pages on your website. We need to make our website look appealing to the user, to the end user, so that people will actually like to come to our website and then use our website. Now, what is CSS? CSS एक styling language है, cascading style sheet. CSS stands for cascading style sheet. It is used to style a web page. It takes JSON-like approach, which stands for JavaScript Object Notation. This is usually used to make API metadata, and we will cover this later on, but not now. Okay, so right now you can just take it for granted, like just understand the basic principles, and we will go on to JSON later.
So it takes a JSON-like approach to assign key value pairs, key to value pairs. What are these? Key to value pairs. What does this mean? If I have a pair, okay, key is suppose the name, okay, I have an object. So suppose I have this USB stick, right? I have this USB stick. When I take the USB stick out, this is an object, suppose, right? I'm giving this object some styling, okay? So what I would say is, what is the color? Okay, everyone tell me in the chat, what is the color of this USB stick right now I have in my hand? It's aqua, it's green-ish kind of color, right? So that would be what we would assign to the color, okay, right? It's green. So we would assign that green color into a key value pair. So which means it would look something like, okay, let me show you. If we do key to value pairs, it's going to be something like, so our key would be color, right? Color, colon, and then we would write green, okay? So this is our key to values. Key is on the left and then values on the right, right? Green is the value which we are assigning to the key color, okay? Or text, right? And then after that, faster alternatives to CSS, like making, when you're using CSS, you will have to take, it will take a while, a very long time to actually style your HTML, okay, right? You need to take some time, you need to put some effort into styling your HTML, but you need to make our separate styling sheet as well, right? When we make when we make a website, you would usually need to make a separate page, a separate file, just to style everything. But in here, we have faster alternatives to CSS, like Tailwind CSS, which is basically, which makes utility classes, right? So whenever we use Tailwind, what happens is in the background, it makes its own utility classes. Like it has utility classes for color, shape, size, and everything. So we don't have to code a lot of CSS, which makes the website time it basically reduces half the time we need to make our website, because we'll need a bunch of classes and then we'll have to like split it around, so we don't have a lot of code in one file. It's gonna be really complicated, but if we use this, it's gonna be very simple. Okay. So why should you learn JavaScript? Okay. You have probably heard of JavaScript, but now that you know what it is, what's the point of learning JavaScript, right? If I learn JavaScript, what am I going to earn out of it? What am I going to take from it that will help me in the future? You should learn JavaScript because it is cross-platform, meaning you can make more than just websites with JavaScript. So JavaScript has support for React Native, which is a framework which can make apps for mobile devices. Not just Android, but Apple and Android. And you can also, since it's cross-platform, and it works for desktop with Electron, and it uses React Native for Android or mobile. It is one of the most popular programming languages, so it's used very commonly. It allows developers to build interactive websites, right? I told you before, whenever you make a website, it's just a skeleton until you add JavaScript to it. Until you don't add JavaScript, your website cannot do anything, cannot like physically make an interaction except for stuff pre-baked into HTML, right? And it also supports web APIs. So web APIs, as in, like, suppose you have a database. This database has hundreds of values of data, right? I have this data set. Suppose I have a data set of cars, and I'm making a shop where you can buy cars. So people can go in here, they can scroll through this, and then JavaScript has support for web APIs. So we can use APIs, which give us a key
So we could like make our own kind of like search engine, like Google. Okay, and then we have, it also contains a large ecosystem of packages to help you make your website development faster, right? Yeah, so that's basically all about why you should learn JavaScript. And that's it. So now we can jump into actually coding this, right? So to do JavaScript, to learn the JavaScript and to do JavaScript, what you need to do is you need to download something called node.js. Node.js is a JavaScript runtime made from the Chrome V8 engine. We need this for future use, which we will need it to make APIs and things. But right now it's good enough. We can hit the download button. We want to go to the downloading page, and then you want to use Windows, Mac, or Linux, based on what OS you're using. And you will just click on the installer, run it, and then follow all the steps. If it tells you to click any checkboxes, just do the checkboxes and you will be good to go. When you click on Windows installer, it's going to give you a few of these options. You'll likely want to use the MSI version, 64-bit. So you want to go to Windows installer.msi and click on 64-bit. Then you download everything. And then after you download everything, you will have your own type of running environment, where you can make your own like stuff. Okay. So now that we're done with, suppose now you're done with installing. Okay, you can keep this in the background and we can continue doing your code. Okay, I can't hear audio. Connect to audio. So now what we need to do is, now that we're done with this, we need to discuss a little bit about what else we need. We need to have something called VS Code. This is something needed. Until you don't install this, you can't do JavaScript. You need to do VS Code Insiders. Download, just search that up. And then you can either use the Microsoft Store, which is a faster alternative, but you just need to go to the VS Code here, click there, and then download this. Download for Windows 10, 11. Your voice is breaking, not able to hear you properly. Okay. Now what we need to do is we need to go into VS Code, right? Once you download it, it's going to have this greenish icon, if you can see this. This is the icon of VS Code. You want to click here, and then just search up VS Code Insiders. But before you do that, you want to close all your windows, minimize everything. Minimize. Here is where you're gonna end up. You just want to right click on your home page, and then you want to use new, and then you want to use folder. New folder. You can use folders to make to put all your code in. Or you're not really gonna put all your code in the desktop, but this is for now. We're gonna make a folder in the desktop. And let's just say this is going to be HTML basics. So today we're only going to be focusing on HTML. So
we can do that. Put it over here. And then what you want to do is, if it appears on your desktop, click on HTML basics, drag it all the way above the icon, and then let go of your mouse. Take HTML basics, drag it onto VS Code, and then it's going to open up like this. Right, it's going to show HTML basics on the left. You don't have all these tabs, but you'll only have this, and this. Okay, this is all four you're going to have. You're not going to have all of these because these are separate extensions I used. Yeah, so now that we're done with this, we can make our own coding. So everyone give me a thumbs up if you, in the chat, if you are done installing. Just give me a thumbs up in the chat saying I have already installed everything. I'm good with the installing part, something like that, so I know we are ready to proceed. Hey, sorry about that. I have a question. You can go ahead. Assalamu alaikum. Hello, I can't hear that. So I hope everyone's good with installing this, and they I don't understand. Oh, I don't understand. Okay. So अपन हैक उर्दू में भी करेंगे इसको फिर अपने को क्या करना है ओके गिव लिटिल टाइम टू इंस्टॉल जब अपना ये इंस्टॉल हो गया वक्त अपने को क्या करना रहता ये एक कोडिंग से इसमें कोडिंग लिखना रहता अपने को कोडिंग अपन पूरी कोडिंग अपने क्रोम ब्राउजर पर रन कर सकते हैं बोले तो उसमें रहता करेक्ट तो ओके आप लोगों को टाइम हो गया hello hello I can hear you can go ahead 2 minutes sir yes okay no problem time 2 minutes hai okay 2 minutes is there okay thank you so Assalamu alaikum, Azam sir. Azam sir, are you starting with HTML basic? Yes, I'm starting with HTML basics. Okay. So अपने को यहाँ से शुरू करना है पूरा. I'm just waiting for everything to install, and then we will be good. Ready to proceed at any time? Anytime everything finishes, just tell me, and then we are good to go. Okay. So I hope everyone ran the installer and installed everything. So that means we're good now. तो अपने को अब क्या करना है यहाँ पे एक नया फाइल बना देना न्यू फाइल ओके इसमें अपने को क्या बनाना है इंडेक्स मेक श्योर टू नेम इट इंडेक्स क्यों बोले तो ये इंडेक्स बोले तो होम पेज का नाम रहता है इंडेक्स index.html right this is our HTML file आपको ऐसा आइकॉन भी आ सकता है आपको क्या करना रहता है यहाँ एक्सटेंशन पे जाके एक दो तीन एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना है एक्सटेंशंस बोले तो ये 3 डब्बे आते हैं ऊपर डब्बा आता है आपको इसमें से एक थोड़े बहुत ही डाउनलोड करना है इसमें से आपको क्या करना है ऑटो क्लोज टैग ऑटो रीनेम टैग मैंने पूरा इंस्टॉल कर लिया आपको बोल रहा है share screen convention one second so now we are good to go right? Azam sir. Yes क्या इंस्टॉल करना है ऑटो रीनेम जी हाँ ऑटो रीनेम टैग इंस्टॉलेशन क्या करना है इसमें
auto rename tag and auto complete tag. Auto close tag. Auto close tag and auto rename tag. फिर आपको उसके बाद क्या करना है, ये दोनों इंस्टॉल कर लेना है। मटेरियल आइकॉन 3, आपको मटेरियल आइकॉन 3 डाउनलोड करना है। ओके, अपने अब क्या करना है, अपने वो एक्सप्लोरर पे जाना है वापस। यहाँ पर index.html बोल के फाइल बनाए, और आपको एक करना था, भूल गई आपको, ये सुपर इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्या करना है बोले तो लाइव सर्वर बोल के रिक्विड डेक्स से एक्सटेंशन है, तो क्लिक कर लेना रहता है। इंस्टॉल, मैं इंस्टॉल कर लिया, इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा हूँ। अपना कुछ ऐसा रहता सर्वर पूरा। When it's with those 3 extensions, just give me a thumbs up. The first one with all caps letters. Mostly all of them work. They're all the same thing. मगर जो मैं यूज करता हूँ वो भी चलता, जो भी या इट्स ऑल ओके। So that's enough time to do this. अब आपको क्या करना रहता, ये जो गो लाइव का बटन है, राइट, रन लाइव सर्वर, उसमें वो ये क्लिक कर देना रहता, फिर इसको भी स्टार्ट। तो अपने को ऐसा पॉपअप होता, अपने को राइट नाउ एम्प्टी लिखा था, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा राइट साइड पे कर देंगे और आधा ये अपने VS कोड पर ये लेफ्ट साइड पे रखेंगे, कोडिंग लेफ्ट एंड प्रोग्रामिंग राइट। तो ये जब अपन यहाँ पे कुछ भी अपडेट करते हैं, सपोज मैं ASDF लिखा हूँ, यहाँ अपने को ASDF बोल के अपडेट हो जाता है, मैं सेव कर लेता रहता, यहाँ रिफ्रेश करना रहता। एवरी टाइम आप करें चेंज, यू नीड टू सेव इट। तो आप index.html में कुछ भी लिखने का आपको Ctrl+S डालना रहता, इसको अपन ऑटो सेव पे भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+Shift+P दबा के ऑटो सेव लिखना है आपको, फाइल टॉगल ऑटो सेव। एवरी टाइम आप कुछ भी चेंजेस करें, एवरी 5 सेकेंड्स, एवरी 1 सेकेंड, उन्हें ऑटोमेटिकली सेव कर दो। और टैग ऑटो रीनेम टैग, ओके। अपने को क्या करना है, एक बार एक्सक्लेमेशन पॉइंट लिखना रहता, राइट, दिस वन टाइम एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आपको इसमें कोड को इग्नोर कर देना पड़ता, मोस्ट ऑफ दिस कोड you will only need to know that you need to write, okay? Not, अपने को फिर एंटर दबा देना है। डिवाइस विड्थ में वो रहने देना है, स्केल 1.0 रहने देना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ चेंज कर सकते हैं आप। मैं थोड़े टैब्स बंद करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखता आपने चीज़ें। तो अपने को राइट नाउ 127.0.0.1:5500 आपको भी दिखाता है, ये दिखाता। आपको क्या करना रहता है, ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा ना, डॉक्यूमेंट दिखा रहा, तो जगह आपका एक टाइटल लिख देना। सपोज आप लिख रहे हैं, आपका नाम लिख दिए यहाँ पे, सपोज मेरा नाम आजम है, आजम वेबसाइट, ऐसा लिख देंगे आप, सेव। फिर आपको यहाँ रिफ्रेश करना है। अब आपको यहाँ टॉप पे टैब पे आजम वेबसाइट दिखा। अब अपन इतना लिखे, आपको कुछ दिखा रहा नहीं बोल के, आपको ये मेन क्वेश्चन आपके माइंड में सबसे पहले आता, क्यों बोले तो जो भी अपने एलिमेंट्स लिखे अपन, तो आपको एलिमेंट्स पे भी दिखाना है।
दिस इज ऑल एलिमेंट्स, राइट। आपको ये मालूम होना है, ये खाली मालूम रहता होना है बस, आपको इतने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको पूरा डिलीट कर दे सकते हो, अपन इसको बाद में लिखेंगे, बट फॉर राइट नाउ दिस इज गुड इनफ। ओके, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि टाइटल का फंक्शन क्या है। तो ये पूरा कोड डिलीट कर दिए, अपन क्या करेंगे, अब बेसिक से शुरू करेंगे, जैसा कि टैग्स रहते, बेसिक फंक्शनैलिटीज रहते। तो अपन क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे अपन छोटी मोटी, अपने एक्सप्लेनेशन के बारे में लिख लेंगे अपन, अपने नाम लिख देंगे उसमें, अपन क्या फील्ड के हैं, वो पूरा ऐसा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाएंगे अपन। अभी आज तो अपन HTML करें, कल अपन थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा अपन CSS में करेंगे, जो भी बेसिक्स है CSS के, एनिमेशंस कैसा डालते हैं, कल अपन वो फोकस करेंगे। आज अपना मेनली फोकस क्या है बोले तो, ये जो कोडिंग है इसमें में मैनिपुलेट कैसा करना है, इसमें अपने वेबसाइट में चीजें कैसे ऐड करना, राइट। तो अपन H1 लिखेंगे, राइट। H1 बोले तो अपने H1 से H6 तक जाता है। H1 बोले तो मैक्सिमम साइज हेडिंग, बिगेस्ट साइज आपको H1 में मिलता है। तो सपोज आप यहाँ लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हो सपोज आप न्यूज के, ओके, अपन ऐसा ब्रेकिंग न्यूज लिखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज कोलन लॉरम उत्सव। लॉरम उत्सव बोले तो एक डमी टेक्स्ट है, आपको सेव कर लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर लेना है, ब्रेकिंग न्यूज लॉरम उत्सव दिखा रहा। अब अपने को इसमें मल्टीपल अपने सब हेडिंग भी बना सकते हैं, मगर अपने को उतनी बड़ी आर्टिकल करना नहीं है, फॉन्ट साइज इज नॉट विजिबल। आपको हर बार करे वक्त क्रोम में भी रिफ्रेश करना है, तो क्रोम में रिफ्रेश करके भी देख लिया और आना चाहिए आपको। ब्रेकिंग न्यूज लॉरम उत्सव। अब अपने को क्या करना है, यहाँ नीचे क्या बोलते सो अपन लिस्ट टैग लिख सकते हैं, लिस्ट बोले तो क्या क्या हुआ इवेंट्स, मगर अपने को मेन हेडिंग के अंदर एक पैराग्राफ टैग लिखना है। पैराग्राफ में क्या बोलते सो क्या क्या इंफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ कल बोल के अपन सपोज एक न्यूज का बनाने वाले, अपन ऐसा P लिखना, राइट। P बोले तो ऐसा ऑटोमेटिक कंप्लीशन आता है, एमिट ऑटो कंप्लीट बोल के दिखाता है, एमिट अब्रिविएशन, क्लिक ऑन एंटर, P डाल के एंटर। अब अपने को P लिखे बाद में से, P माने P फुल फॉर्म इज पैराग्राफ, राइट। यहाँ पैराग्राफ टैग है, अपन आर्टिकल टैग्स भी यूज कर सकते हैं, मगर ये अपन बाद में करेंगे सेमांटिक एलिमेंट्स का। फॉर राइट नाउ दिस इज गुड। P के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को खाली सपोज अपन लॉरम लिखना है, लॉरम एक अपने को VS कोड में एक लॉरम बोले तो डमी टेक्स्ट ऑटोमेटिक आता, लॉरम लिखते थे, लॉरम बोले तो एमिट अब्रिविएशन में आता, एंटर दबाते कि ये डमी टेक्स्ट पॉपअप हो जाएगा ऐसा। ओके, तो ये लैटिन में है लिखे हुआ, अपने को मैटर नहीं करता, ये डमी टेक्स्ट है, इंडस्ट्री में ये यूज करते हैं, इंडस्ट्री में ये वाइडली यूज्ड डमी टेक्स्ट है। अब आप नोटिस कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के साथ उन्हें पूरी फुल विड्थ ले ले रहा, अपन इसको उसकी विड्थ कस्टम रख सकते हैं। राइट नाउ अपन खाली HTML से करने वाले हैं, इसमें प्रॉप्स बोल के रखें, हर कंपोनेंट में, हर एलिमेंट में प्रॉप्स रहते सब, इससे अपन उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ से क्या करना है, विड्थ, आप जब भी कुछ भी लिखे आपको ऑटो कंप्लीशन के लिए कंट्रोल स्पेस दबा सकते हैं, उससे आपकी ऑटो कंप्लीशन होती है। कभी कभार नहीं चलता आपका ऑटो कंप्लीशन, जब नहीं चला होगा तो आपको क्या करना रहता है, आपको कंट्रोल शिफ्ट भी करके पूरा विंडो को रिफ्रेश कर देना रहता है, इससे आपका उन्हें रिफ्रेश हो जाता है, उसमें मेमोरी आ जाती, जो जो भी है उन्हें क्या बोलते हैं, फिर से रिस्टार्ट करता है उसके जो जो भी रहते हैं, जिसकी वजह से अपना चलना शुरू हो जाता है, राइट। अगर नहीं चला तो भी इट्स ओके, सबमिट में जितना बोले उतना लिख सकते हैं। सपोज मैं 400 पिक्सल्स रख रहा हूँ, सेव, आई डोंट थिंक ये एलिमेंट में है,
लेकिन है मल्टीपल एलिमेंट्स में रहते हैं। ओके, अब आप ये भी करें, आप उन्हें ऑटोमेटिकली बोलता है डिमांड जैसे लैटिन और इंग्लिश क्यों करे, तो मैं यहाँ यूएस में रहता हूँ तो उन्हें मेरे को पूछ ले रहा। राइट, अब ये है परफेक्ट अपने को। तो अपने अभी का तो नहीं चला, अपने को इसको सेपरेट क्लास नेम से देना रहता है। अपन पैराग्राफ टैग लिख दिए। ओके, अब अपन एक ब्रेकिंग न्यूज, अपन एक न्यूज आर्टिकल लिखे सपोज। राइट, ये उसका एक आर्टिकल, उन्हें उसका सेपरेट रहना है। अपने पूरा आर्टिकल एक उसमें नहीं आना, हर आर्टिकल सेपरेट उसमें आना। एक सेकंड मैं इसको रिफ्रेश करूँ। मेरे को विंडो को रिलोड करना पड़ा कि बोले तो क्या बोलते सो, मेरे को अप डाउन होने लग रहा था। अब वापस आगे ओपन चला रही थी। कभी कभार ऐसा करना रहता है, कंट्रोल शिफ्ट आर पर रिफ्रेश। थैंक यू। अपने को ऐसे कीज मालूम रहना, जो अभी अपने चैट में फारूक भी बोल के कोई डाले अपने को कि अभी ये बोले कि कंट्रोल शिफ्ट आर में अपन रिफ्रेश कर सकते। ये कीज अपने को माइंड में रख लेना रहता। हेलो सर, हेलो, ये स्क्रीन कैसा ओपन किया आप? जो है हमारे पास नहीं ओपन हो रहा। कौन सा स्क्रीन? अभी जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, वो वाला। वीएस कोड का ये लेफ्ट वाला है या राइट वाला? दोनों भी। अच्छा, आपको क्या करना है, आप डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे गए तो अच्छा आता है अपने को। कैसा? बेसिक्स यहाँ है। अपन एक फोल्डर बनाए थे यहाँ पे, इसमें फोल्डर आपको एम्प्टी दिखा था। राइट क्लिक, इसको खाली ये लेके ऐसा, ये वीएस कोड का लोगो दिख रहा है आपको डेस्कटॉप पे। ये आपको HTML बेसिक्स का लेके इसमें ट्रैक कर देना रहता और ये वेब पेज पॉपअप होता। कोडिंग नहीं आती उसमें, प्री बिल्ड। अपने को क्या करना रहता है, एक्सप्लोरर में जाके न्यू फाइल बटन दबाना रहता, यहाँ जाके आपको index.html लिख देना रहता। तो वैसा है। ओके, अच्छा, और मगर वो डेस्कटॉप पे वो नहीं है, जैसा तो आप बता रहे हो वैसा नहीं है। हमारे डेस्कटॉप पे नहीं आया। जी, हमारे डेस्कटॉप पे नहीं आया वैसा, आप जैसा बता रहे हो वैसा नहीं आया। जी, डाउनलोड करने के बाद में नहीं आया। अच्छा। तो आप क्या बोलते सर, टास्क बार पे से भी कर ले सकते हो। टास्क बार पे जाके सर्च कर लेके क्या बोलते सो, आपका वो डाल देना, क्या वीएस कोड लिखना रहता, वहाँ पॉपअप होता। आपको क्लास के बाद में आपको पूरा दिखा देता हूँ कैसा करना है। ये डाउनलोड में जाके वो किए, ये कहाँ गया? डाउनलोड कर रखने हो गया। नहीं, नोट जीएस डाउनलोड हुआ, वीएस कोड नहीं हुआ। अच्छा, वीएस कोड जीएस देखो। डाउनलोड हुआ, वीएस कोड डाउनलोड नहीं हुआ जो है। अच्छा, आपको वीएस कोड डाउनलोड करना है, जरूरी है वीएस। हाँ, मैं आपको क्लास के बाद दिखा देता हूँ जो जो भी है ठीक है। आपको। अच्छा, तो अब अपना राइट नाउ एक न्यूज आर्टिकल है, ब्रेकिंग न्यूज लॉरम इप्सम बोल के है। अब आपको क्या करना है, इसके हर अपने को सपोज अपने को इसका सेपरेट आर्टिकल है, इन्हें खुद की आर्टिकल है। तो अपन क्या करना है, एंटर दबा के आर्टिकल लिखना है। राइट, आर्टिकल टैग फर्स्ट, क्या खुद की आर्टिकल रहने वाली है, उसके अंदर अपन ले लेके ऐसा लिख देना। हमारे तो ये हर चीज सेपरेट है। प्लीज म्यूट कर दिया, अपने सेपरेट आर्टिकल है।
अब अपने को क्या करना है, इसके नीचे सपोज एक लाइन डाल दो, मैंने हर आर्टिकल के नीचे एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल गाइस, हैच अप, एंटर, और अपने न्यूज के नीचे लाइन आ जाती है, रिफ्रेश। ओके, अब मैं अभी रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करा, आपको आ जाना चाहिए वो लाइंस, मेरे को याद नहीं चल रहा, तो मैं अभी रीलोड करा था उसमें। अब देखिए ये अपना पेज है, राइट, $, से टैबलेट अपना ये है ब्रेकिंग न्यूज, एक न्यूज आर्टिकल है, अपन इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर ले सकते हैं, ये सेकंड आर्टिकल है, सपोज अपन यहाँ कुछ और लिख रहे हैं, अब अपने आर्टिकल है, राइट, तो अपने 2 आर्टिकल डाले, अब अपने को एक मेन हेडिंग भी डाल दे सकते हैं अपन, ये आर्टिकल्स के बाहर अब जाना, और आप क्या करना, H1 में अपना एक मेन हेडिंग डाल दूँ, ये बाकी के जो भी है अपने इसको H2 में लिख देंगे, जैसा कि ये है H2 मिनी हेडिंग, और ये भी H2 मिनी हेडिंग, थोड़े छोटे आते हैं, H1 माई न्यूज वेबसाइट, फिर इसके नीचे अपन एक HR डाल देंगे, एक लाइन चले जाते हैं इसके नीचे, तो अपने टॉप में बड़े फॉन्ट में माई न्यूज वेबसाइट आता, और नीचे ब्रेकिंग न्यूज, अपने 2 ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी न्यूज है आ जाती है, तो अपन इसी तरह की एक वेबसाइट बनाया, वेरी सिंपल बट फंक्शनल। अब मैं आपको इंशाल्लाह कल तक आपको ये जो CSS है, CSS में जो भी है स्टाइलिंग है वो दिखाऊंगा, अभी अपन इसमें और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, खाली HTML से भी करें, राइट। मैं ये क्लास से कंटिन्यू करने से पहले मैं 2 लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, पहले से पहले लोग में साई बाबा है, वो बहुत मोटिवेट करे मेरे को क्लासेस फिर से शुरू करो करना बोलते, तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू है मेरे तरफ से, उनकी वजह से अभी क्लासेस अब चल रही, न तो इरादा तो नहीं था, तो थैंक यू बहुत बहुत साई बाबा, वेरी मच थैंक यू। तो ये वेलकम वेलकम सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, अपने को अब क्या करना है, इसमें वेबसाइट अपनी फंक्शनल है, वेबसाइट में अपने को कुछ दिखा रहा हूँ, राइट, अब अपने को क्या करना है, कुछ सभी एक सपोज अपना नीचे का आर्टिकल थोड़ा लंबा है, राइट, लॉरेंसम बहुत लंबा है, ठीक है, पूरा लॉरेंसम लिख देंगे अपन यहाँ पे, लॉरेंसम डॉलर से टैबलेट, राइट, अब अपन रिफ्रेश करें तो अपना ऑलमोस्ट पेज ओवरफ्लो हो जा रहा, ठीक है, यहाँ तक जा रहा, फिर उन्हें क्या होता है, मान तक आ गया भी, अपन कैसा करना है, इसको एक मार्क एलिमेंट बोल के देता, ऐसा कुछ है वो एलिमेंट का नाम, अब देखिए ऐसा मार्क ही MARQUEE, अन्य ऑटो कंप्लीशन में नहीं आता होगा, लेकिन अब अपने को कैसा आ रहा है, देखिए हमें लेफ्ट से आ रहा, राइट पे जा रहा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपन राइट टू लेफ्ट है राइट ना, लेफ्ट टू राइट करेंगे अपन, रिफ्रेश, सेव एंड रिफ्रेश, RTL करेंगे, हेलो सर, फॉन्ट्स बहुत छोटे हैं जो है, समझ में नहीं आ रहा। कौन सा ये पेज के, हाँ, right पेज के। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, अब और थोड़ा भी। और थोड़े बड़े होना। अब अब कैसे, ब्रेकिंग न्यूज।
ब्रेकिंग न्यूज जो लिखा हुआ है जी। वो एक ही अच्छा बड़े फ्रॉन्ट्स आ रहे हैं, बाकी जो नीचे हैं वो बहुत छोटे छोटे नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा, हम्म, अपन यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर देंगे उसका। तो मैं यहाँ H3 टैग्स लिख दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा छोटा रहता, लेकिन ये जो अपना ये ब्रेकिंग न्यूज है उससे खाली थोड़ा छोटा है। अब कैसा है? अब थोड़ा बड़ा है मगर क्लियरली विजिबल नहीं है जो फिर। अच्छा, इसको भी H2 में लिख देता हूँ। पूरा बारीक हो गया। बराबर हो गया। बिल्कुल। पूरा बारीक हो गया, अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब अब थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। तो अब अपन ये जो है, ये इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया। क्यों बोले तो अपन इसको H1 हटा के मार्क लिख दे, मगर अपना फॉन्ट भी उतना ही रहना, तो अपने को क्या करना रहता है, यहाँ H2 टैग लिखना, और ये जो भी ब्रेकिंग न्यूज का है इसको कट कर देना है अपने को। कॉपी कट कर लेंगे अपनी, फिर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, रिफ्रेश, और देखिए ये उसका भी फॉन्ट बड़ा होगा। कई को बोले तो अपन क्या बोल रहे हैं, मार्क ही बोले तो उन्हें लेफ्ट टू राइट ऐसा मूव होता, राइट? क्या डायरेक्शन लिखना है? राइट। Scrolling. डायरेक्शन में अपने को ऐसा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, अपने को ऐसा डायरेक्शन लिख के राइट लिख देना रहता। तो उन्हें एंडिंग से स्टार्टिंग तक ऐसा नीचे आता, मगर ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, अपने को लेफ्ट टू राइट ही चाहिए। लेफ्ट टू राइट, ब्रेकिंग न्यूज, लोअर मिक्सम डॉलर सेटलमेंट ऐसा दिखा रहा अपने को पूरा। Okay, until this point, any questions? आजम सर, फास्ट मूव और आजम सर, स्लो नहीं कर सकते इसको? और Slow. एक सेकेंड, अपन टाइम देखेंगे इसमें। Duration. Duration equal to 5 seconds. Repeat. नहीं, यही 6 मैक्सिमम स्पीड है अपने को। ओके। कल जब अपन CSS पे फोकस करते हैं, अपन खुद के एनिमेशन बना सकते हैं, जिधर अपने को अपना पूरा कंट्रोल अपने पे रहता है इसका। एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ये वेबसाइट में कैसा चल रहा है, ये एलिमेंट्स कैसा है, ये लाइंस कैसा है, ये स्पेसिंग कैसे है, अब अपन एक इमेज कैसा डाल सकते हैं इसमें? वीएस कैसे डाउनलोड करना सर? जी, वीएस कैसे डाउनलोड करना सर? VS कोड वीएस कोड। आपको उसके वेबसाइट पे जाना रहता है, मैं शेयर लिंक करता हूँ उसका। और चैट में जाओ। ये जो चैट में लिंक डाला है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर। अब अपन यहाँ पे है, वेबसाइट अपनी चल रही प्रॉपरली, और अपने यहाँ एक अच्छी वेबसाइट होगी,
अब हर न्यूज के साथ एक पेज, एक इमेज भी आना ना छोटा, दिखाने के लिए ये न्यूज है बोल के। तो अपन क्या करेंगे, क्या यहाँ है, इसके ऊपर एक इमेज डालेंगे हर न्यूज के ऊपर। सर डाउनलोड हो रहा था, मॉनिटर को वहाँ सर्कल होने के बाद। एक सेकंड म्यूट कर लेंगे अपना को। अब अपने को क्या करना रहता है, इमेज डालना रहता है। इमेज में अपन सोर्स में यूआरएल डाल सकते हैं कौन सी भी इमेज की। इमेज में अपन एक कौन सी भी इमेज डाल सकते हैं, मैं सुपर कार की इमेज डालूं। डॉट बाय पर अपन इमेजेस में जाके कौन सी भी एक इमेज क्लिक कर लेना है रहता, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। फिर आपको क्या करना रहता है, आपके पेज में जाना है जिधर सोर्स लिखे हुआ है, सोर्स में जाकर वो लिंक पेस्ट कर देना है। अब रिफ्रेश करें तो क्या दिखा रहा है आपको, कार की फोटो आ गई ऊपर। अब फिर अपनी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज में अपन क्या लिखेंगे, इतना पूरा से अच्छा अपन क्या लिखेंगे, सुपर कार्स आर सेलिंग coming out at very cheap prices. Refresh, अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कार्स आर सेलिंग out at very low, very cheap prices. वेरी चीप में लोन इतना करता रहता है। तो ये अपना फर्स्ट वेबसाइट है, इसमें ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। अपन क्या करें, अपन आज इसमें एक H2 डाले, मेन टाइटल डाले, इसमें थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी डाले, इसमें मूवमेंट क्या बोलते हैं, टेक्स्ट मूविंग का डाले। तो अपन इसमें ज्यादा कुछ नहीं डाले। अब अपना टाइटल थोड़ा छोटा है इसीलिए मैं ऑफ कर दिया मार्केटिंग, तो अपन और डिलीट कर दिया मैं वो एलिमेंट को। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कार्स आर सेलिंग आउट एट वेरी लो प्राइसेस, मीनिंग अब अपन अपने को न्यूज दिखा दे रहा, $, सपोज ये पूरा एक बॉडी टेक्स्ट है, राइट। यहाँ बोल रहा है कि ये कहीं हुआ, ये क्या रीजन के लिए बहुत लो है, सपोज ये बोल रहा हूँ। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक चैलेंज है मेरे पास, कल के क्लास तक एक ऐसी वेबसाइट बनाइए इसमें थोड़े और न्यूज के रहना, थोड़े और न्यूज आर्टिकल्स रहना, और थोड़े और इमेजेस रहना। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोले तो आप जब आप थियोरेटिकल लर्न कर रहे हैं, आप क्लासेस में देख के समझ जाना रहता, फिर आपको समझ गए बाद से उसको यूज में भी लाना रहता। ये क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, एवरीडे एक रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ, जो भी क्लासेस है उसके रिकॉर्डिंग्स रहते। ब्रेकिंग न्यूज तो अपन एक ऐसा बना दिए न्यूज की वेबसाइट, माई न्यूज वेबसाइट। फिर आप माई न्यूज वेबसाइट के बाद आपका नाम भी लिख ले सकते हैं, बाय, तो मैं लिख रहा हूँ बाय आजम। अब आप यहाँ पे एक क्या करिए, एटलीस्ट 4 न्यूज आर्टिकल्स रहना है इसमें, ऐसे जो आर्टिकल टैग का फॉर्मेट से ऐसे 4 न्यूज आर्टिकल्स रहना अपने पास। हर उसके सेपरेट इमेज रहना, सेपरेट बॉडी टेक्स्ट रहना। और अगर बहुत लंबा टाइटल है, तो आपको क्या करना है, उसके जो जो भी है मार्क एलिमेंट में डालना है। तो हेलो हेलो ने कैरोसेल के वैसा स्पिन होके अपने पास आ वैसा, तो लेफ्ट टू राइट हुए होके है वैसा। तो ये है अपनी वेबसाइट। एनी अदर क्वेश्चंस? अब सपोज आपको इसकी इमेज थोड़ी छोटी बड़ी करना है, आपको यहाँ जाके विड्थ में जाना है, इसमें विड्थ प्रॉपर्टी रहता है, विड्थ में अपन सपोज 100, ये पिक्सल्स में आपको कुछ लिखना ले रहा था, 100 लिखे तो
मैं विड्थ को चेंज कर देता और हाइट को भी। सपोज मैं इसको 500 कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं रहता कि बोलो तो पिक्सल अमाउंट है इसका, इसको 5 टाइम्स कर दिए तो अपना वो आता, ये आता, राइट। विड्थ अपन 100 पर लिख रहा हूँ, मगर 100 के बाद परसेंट करूंगा। इसका मतलब है ये स्क्रीन का फुल विड्थ ले लेने वाला है, राइट। अब अपने को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ा, क्यों बोले तो इमेज बहुत बड़ी है। अपन इस पे जब अपन HTML से करते ये अपने SEO बेस्ट प्रैक्टिस बनाते, राइट। और अपन राइट नाउ ये अपने वेबसाइट, अपन ना इंटेंशन नहीं था ये, मगर उन्हें ऑटोमेटिकली मोबाइल फ्रेंडली है, अपने को दूसरे वेबसाइट्स पे मैन्युअली करना रहता है, राइट। तो अपन F2 दबा के देखना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो थोड़े वेबसाइट बहुत कम वेबसाइट्स रहते हैं मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स, आपको नहीं करना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज अपन एक सपोज मैं आईफोन एक्सआर पे खोल रही हूँ वेबसाइट, तो माय न्यूज वेबसाइट हर चीज ऐसा अपने को ऑटोमेटिकली ऐसे परफेक्ट साइजिंग आता है आदि, मगर अपना इंटेंशन नहीं था ये, बहुत थोड़े वेबसाइट्स में ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता। लेकिन जब अपन बड़े वेबसाइट्स बनाते हैं जिसमें और स्टाइलिंग रहती है और स्टाइल पैक्ड रहता, उसमें क्या रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पूरा रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना। क्यों बोले तो ये वेबसाइट का सिंपल डिजाइन था बहुत, दूसरे वेबसाइटों का थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, और जितना कॉम्प्लेक्स आपका डिजाइन रहेगा उतना आपको टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने। और आप जो जो भी इमेज डालेंगे इसमें आप उन्हें फुल विड्थ लेना, राइट। तो वैसा है। तो अपन फर्स्ट न्यूज डाले, कुछ भी नहीं है उसमें इमेज। आपके पेज में मैं आपको होमवर्क के रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट्स आपको भेज दो मैं, और यहाँ पे ऑनलाइन, और एक फॉर्म में आपको उसके क्या बोलते हैं एक 2 स्क्रीनशॉट्स भेज देना रहता। उसमें एक विच फॉर्म में आपको दिखा देने वाला हूँ मैं क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट। तो वो है, राइट। तो यहाँ है अपना फिनिश लाइन, ये अपनी वेबसाइट है, वेरी स्मॉल वेबसाइट, could improve on it, add more, we could add more styling, more rounding क्या बोलते हैं ये इमेज बहुत शार्प है, अपन इसको थोड़ा राउंड कर सकते हैं, ये टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं, अभी बहुत कुछ है अपन कर सकते हैं सोया वेबसाइट में। तो ये अपनी फर्स्ट वेबसाइट के वैसा है। एनी क्वेश्चंस? Any questions on this website? ये कैसा करे सर, फिर एक बार बताओ जरा। क्या ये कार कैसा लेके आए जो? अच्छा कार का मैं हाँ। बता देता हूँ, फिर से गेस कर देता हूँ ये लाइन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ एक इमेज टैग लिखे, राइट। इमेज टैग्स आर फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस। इमेज क्लिक करते ही SRC लिख आता है यहाँ ऑटोमेटिक। अपना को अच्छा। डॉज सब जैसा अपन ऑनलाइन जाके डॉज वाइपर इसने आप जो कौन सी भी आपके पसंदीदा कुछ भी फोटो ला सकते हैं यहाँ पे। अभी अपन वो मत लिए क्या बोलते सो आपके फाइल सिस्टम में है सो फोटोस, अभी अपन वो बाद में करेंगे, क्यों बोले तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, अपन वो भी फोकस करेंगे मगर। ये डॉज वाइपर है, इसको अपन क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, कौन सी भी गूगल पे इमेज सर्च करके ले सकता है। यहाँ आना है आपको, SRC में जाके पेस्ट कर देना है, पेस्ट। अजम सर, जी ये HR टैग जो है सर, HR टैग जो है वो लाइन के लिए यूज होता। जी HR बोले तो हॉरिजॉन्टल राइज, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल राइज। ओके ओके तो एक लंबी ऐसा लाइन ले ओके, लेना पेज विड्थ के लिए। यस यस। और ये ऑटोमेटिकली साइजिंग नहीं लेना चाहिए, अपने को विड्थ लग के अपने को मैनुअल स्टाइलिंग डालना रहता है। विड्थ में आपको 100% लिखे तो बराबर कार दिखती है आपको, इतना ऐसा, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस?
बिसाइड दैट मैं एक काम करता हूँ, जरा एक ये मीटिंग को स्टॉप करना पड़ता मेरे को। मैं क्या करने वाला हूँ, स्टॉप करने वाला हूँ, फिर आप यही लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए सोमवार को। सही है ना? मैं ये मीटिंग को स्टॉप करने वाला हूँ, ग्रुप में जो सेम लिंक है वही लिंक से आप ज्वाइन कर ले सकते हैं किसी भी ग्रुप में। ओके, कितनी देर में ज्वाइन करना है फिर? आप अभी ज्वाइन कर ले सकते हैं। मैं एंड करते कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके। जी अच्छा, ठीक। फिर वहाँ एंड करेंगे अपन। वो है एंड करो, मैं अब आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए फिर से। रिकॉर्डिंग्स शेयर होने वाले हैं अपने ग्रुप में, एक वीडियोस के फॉर्म में, यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में। आप ये यूट्यूब वीडियो से आप खुद से बना सकते हैं। जब क्या बोलते हैं लेसन के टाइम पे आप फोकस करें तो क्या रहता, आपको एक पेज से होता, फिर आप जब रिकॉर्डिंग देखे वक्त आपको मालूम रहता, अच्छा ये करे थे, ये करे थे, ये करे थे। तो अब एक बार जब अपन लेसन लाइव लेसन रहता तो उसमें फोकस कर लेना रहता, फिर बाद में जब रिकॉर्डिंग शेयर होता उसमें आप क्या बोलते हो कोडिंग कर लेना, वहां से शुरू करना। लेसन में भी करना अच्छा है, आपको हैंड्स ऑन होता। मगर अगर आप लेसन में करें, लेसन में करना चाहिए, नहीं बोल के नहीं, लेकिन आप करे बांधने से आपका खुद का उसमें डालना जरूरी रहता, राइट। तो मैं एक क्या बोलते हैं गूगल फॉर्म बनाने वाला हूँ। एक आपको अप टू एक कोर्स 2 स्क्रीनशॉट्स ले लेके आप डाल दे सकते हैं पेज पे, और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के, मैं वो लोगों को व्यू कर ले सकता हूँ। और आप इसमें जो जैसा बोले वैसा बना सकते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। आपको सेम डिजाइन नहीं, अगर आप थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स आते हैं CSS ये वो भी अप्लाई करिए। मेरे खाली एक रिक्वायरमेंट्स रहती, अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं, खाली मेरे पे रिक्वायरमेंट्स रहते, रिक्वायरमेंट्स एक्सीड करना रहता, हमेशा एक डेडलाइन रहती, मगर आपको चाहिए कि हमेशा डेडलाइन से पहले, ठीक है। तो अपनी ये इसका डेडलाइन टुमारो है, कल तक आप इसको अपलोड कर लेना है उस पर। अगर नहीं हुआ, नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, आप क्लासेस पे भी दिखा दे सकते हैं। अगर आपका वो वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स अपलोड नहीं हुए तो आप शायद यहाँ पे भी दिखा दे सकते हो क्लासेस में। टुमारो मैं 15 मिनट्स एट स्टार्टिंग में रखूंगा वो होमवर्क के लिए फॉर द पीपल दैट डिडंट सबमिट इट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग? इसमें स्क्रीन ओपन नहीं हो रहा है। GS Node और VS Code दोनों भी डाउनलोड करे हैं, जी इसको ओपन करने का थोड़ा दिखाइए और एक टाइम। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ hands on। जी सर। और सर इसमें प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज रहते क्या? जी प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज रहते क्या इसमें? जी, और रहते हैं इसमें प्री डिफाइंड, जैसे कि रिएक्ट एक है, नेक्स्ट एक जी है, ऐसे वेबसाइट्स ये लाइब्रेरी से अपन वेबसाइट्स बना सकते हैं, बहुत इजी हो जाती है वेबसाइट्स बनाना। अच्छा जी जी। तो आपको नीचे नोड.js नहीं, वो नहीं, नोड.js पे नहीं खुलना है, आपको खाली VS Code खुलना है। लॉग फिनिश अभी राइट ना आपको नोड.js का ज्यादा वरी नहीं करना है, अपन बाद में भी कर सकते हैं नोड.js का, मगर अब राइट ना डाउनलोड कर लेना अच्छा है। आपको जी क्या करना है, डेस्कटॉप पे चले जाना है अब। सर, ये पूरा मेरा स्क्रैच निकल के खुल के आ रहा ना इसमें, जी ये प्रोजेक्ट का पूरा इसमें आ रहा सर, ये VS हाँ Codes नहीं, में। तो आपको क्या करना है, आपका माउस पूरा बॉटम राइट ऑफ स्क्रीन पे ले लेना है, ले लेके जाइए जी बॉटम सर। राइट, नीचे पूरा माउस नीचे ले लिए, राइट नहीं, विंडो नहीं, कंप्यूटर के स्क्रीन की। सर ये पाइथन नोटबुक है ना सर ये? जी हाँ, पाइथन नोटबुक है, ऑल द वे टू द राइट। यानी तो ओके। VS Code को मिनिमाइज कर दिया, आप डेस्कटॉप पे आ जाइए, हर चीज को तो इसमें मिनिमाइज कर। कुछ ये कोर्स के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट है क्या, मतलब जी प्रीरिक्विजिट कुछ है क्या इसको, मतलब
जी सर, डेस्कटॉप से ओपन करूँ क्या सर? हाँ, क्या करना है आपको, राइट क्लिक, मेन विंडो पे राइट क्लिक करना है, जी सर। न्यू फोल्डर करना है, खाली राइट क्लिक करके छोड़ देना है ये फोल्डर। इसको आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी, वेबसाइट, माय वेबसाइट, कुछ भी दे सकते हैं। जी सर। जब आपका हो गया, जब एंटर कर देके उसको ड्रैग करना है आपको विजुअल स्टूडियो में। वो विजुअल स्टूडियो को ये फोल्डर में ड्रैग करना सर? नहीं नहीं नहीं, ये जो फोल्डर है उसको ड्रैग करके विजुअल स्टूडियो के ऊपर रख के छोड़ना है। छोड़ दिया मैं आपको माउस, जी अब सर। VS कोड खुलता है नया पेज पे। अब आपको न्यू फाइल का बटन दबाना है, यस आई ट्रस्ट दी ऑथर्स, या जी आपको सर। जाके या नया फाइल बनाना है। अब नहीं, वैसा नहीं, दूसरा 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 तरीका से करना है। एस्केप। जी सर। अब आपके लेफ्ट साइड के साइड बार पे जाइए। यहाँ पे सर? नहीं, थोड़ा राइट, ये बीच का साइड बार। इस पे? हाँ, वो एक फाइल का आइकॉन है, देखिए वो वाला दबाइए, जी सर। index.html। एंटर। जी सर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो अपना कोड है यहाँ पे वो लिख देना है। ये आप रिकॉर्डिंग से कर ले सकते हैं, क्लास में ओके सर। रिकॉर्डिंग रहने वाली है, आप ये रिकॉर्डिंग से कर लिए तो आपको क्या बोलते सर, रश भी नहीं पड़ता। वो जो और एक व्हाइट स्क्रीन खुली थी ना सर, उसको कैसे ओपन करना? आपको अब क्या करना है, पूरा लेफ्ट पे जाके ये एक्सटेंशंस का डब्बा दबा दीजिए, 4 बॉक्सेस रहते हैं। लेफ्ट में यहाँ पे सर? जी हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो रीनेम टैग डालना है। ये सर्च में डालना है सर? हाँ, वो सर्च में लिखना रहता है ऑटो रीनेम टैग। नहीं नहीं नहीं, ऑटो? वाने वो एक्सटेंशन टैब में, 4 बॉक्सेस में दबा के यहाँ पे? वहाँ वहाँ क्लिक करके आपको ऑटो रीनेम टैग, टैग टैग टैब नहीं, टैग टैग? टैग। जी। आपको एक सेकंड, क्या बोल रहा है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, इंस्टॉल, इंस्टॉल पे दबा दीजिए। फिर ऑटो क्लोज टैग के लिए सर्च अप करिए, कहाँ पे? वहीं जिधर आप सर्च करे थे वहां पे ऑटो क्लोज टैग डालिए। यहाँ पे राइट करना फिर एक टाइम? हाँ, वहां पे ऑटो क्लोज टैग है। ओके। ऑटो क्लोज? जी, ऑटो क्लोज टैग, पहला वाला। इसको? जी हाँ। फिर आपको क्या करना है, सर्च अप करके लाइव सर्वर सर्च करना है, जिधर आप ऑटो क्लोज टैग सर्च करे थे उधर ऑटो लाइव सर्वर सर्च करना है। वीडियो वॉच कर, यहाँ पे और एक टाइम? वीडियो वॉच करा, हाँ मैं आपको वीडियोस भेजने वाला है, तो लाइव सर्वर लिखना है आपको। ओके।
पहला वाला। इंस्टॉल करना है इसको भी। जी हाँ। सर और एक ऑप्शनल वाला कौन सा सर, मटेरियल? मटेरियल आइकॉन थीम था। सर इसका काम क्या है सर? इन्हें खाली आइकॉन्स को चेंज करता है, अपने को ऑप्शनल है वो। मटेरियल आइकॉन। जी हाँ, मटेरियल आइकॉन थीम जी। पहला वाला रहता है वो। अम, अब ये हो गया बाद में से नीचे आपको गो लाइव का बटन आया देखिए। कौन सा है सर? नीचे गो लाइव, आप पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाइए, बीच का टैब मटेरियल टैब टैब टैब। मटेरियल जी मटेरियल आइकॉन थीम है सर, थीम। हाँ, मटेरियल आइकॉन थीम। मटेरियल आइकॉन थीम, ओके। नहीं वो नहीं। आपको क्या करना है, ये जो हेडर है नहीं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाइए। सर्च में नहीं, सर्च में नहीं, हम्म। उधर ऊपर दिखा रहा देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसके राइट थोड़ा नीचे। नहीं, इसको दिख रहा नहीं, इसको जरा साइड में करती हूँ। नहीं नहीं कर सकते उसको साइड में। फिर कैसा जाना सर इधर? उसके नीचे दिखा रहा ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, कहाँ पे दिख रहा है? उसके राइट। वेलकम यहाँ के बाद का है इंडेक्स डॉट वेलकम के एचटीएमएल। साइड में। जी हाँ। जी हाँ वही। मेरे पास दिख रहा नहीं आप सर। ऊपर जा रही हैं, आप ऊपर जा रही हैं, जब नीचे के साइड से जाएंगी ना, आप नीचे जाके एक बार क्लिक करिए, अब नीचे से जाइए, ऊपर वाली लाइन में मत जाइए सर्च के। हाँ बस बस हाँ इसके ऊपर हल्का सा यही ऊपर है। करके क्लिक करिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज आपका नाम लिखिए या कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, फिर हेलो बोल के लिख सकते हैं आप यहाँ। ये ऐसा नहीं लिखना होता, खाली आपका ऐसी नाम लिखिए। हाँ, अब आपको क्या बोलते हैं, गो लाइव पे दबाना है नीचे। नीचे जाइए, बॉटम राइट पे है विंडो के। हाँ, क्लिक उस पर क्लिक करिए। जी सर। स्टार्टिंग दिखा रहा है। जी हाँ। अब आपको क्रोम खोल दिया, अलाउ। हेलो बोल। अब आपका नाम दिखा रहा देखिएगा। जी। अब आप वो HTML में जो भी लिखे आपको यहाँ क्रोम में दिखा देता, क्रोम या बिंग जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है आपको उसमें दिखाता। ये वीएस और ये आप साइड बाय साइड कैसा करे थे सर, दोनों को मर्ज? क्या आपको क्या करना है, जिधर वो दो टॉप राइट पे दो विंडोज दिखा रहे हैं देखिए, एक्स के लेफ्ट पे, ये इस पे? ऑल द वे टू द राइट। यहाँ? नहीं, पूरा राइट, राइट साइड पे, राइट साइड। जिधर आप क्लोज करते हैं ना उसे बाजू, हाँ, क्लोज क्लोज क्लोज, हाँ वो हवर करे तो हाँ थोड़ा उसका नीचे पार्टीशन। जाइए, उसमें लेफ्ट में थोड़ा, नहीं वो नहीं, उसको दबाना नहीं। वो पार्टीशन दिखते ना बॉक्स में, एक क्लिक पार्टीशन करो दिखा राइट। रहा नहीं, उस पे लेफ्ट साइड पे दबाना है आपको। थोड़ा लेफ्ट जाइए, क्लिक मत करिए उसको, सेलेक्ट पे करो, करिए माउस, नीचे के बॉक्स है रहा। दबाना ये नहीं इस है पे? आपको। हाँ लेफ्ट साइड, फर्स्ट वन लेफ्ट साइड, हाँ, फिर एक बार और बोल। करिए, फर्स्ट वन लेफ्ट साइड, क्लिक। हाँ क्लिक करो। फिर अब आपको क्या करना है, ये बिंग के विंडो को दबाना है, जिधर आपका नाम लिखे हुआ है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे? नहीं आपका मैडम, नाम कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ? वो वेब पेज का क्लिक करो, वेब पेज का क्लिक क्लिक कर करो, हाँ दिया बस। उसने। हाँ बस दोनों आ जाते हैं बड़ा। अब आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे जाके जिधर वो 4 डब्बों का पेज है उसको ऑफ कर देना है, क्लिक कर देना है उस पर। अब आप यहाँ जो भी क्लिक कोड लिखे, आपको यहाँ बिंग पे क्लिक करते कि वो आ जाता है कोड। किस? थैंक यू सर। कोई बात नहीं। हम्म,
अब आप स्टॉप शेयरिंग कर दो सर। हेलो सर, जी विदाउट ओपनिंग द HTML टैग्स अपन कैसा एग्जीक्यूट कर दिए वो डायरेक्टली HTML के टैग्स हेड बॉडी को खोल के लिखते ना, जो भी एग्जीक्यूट करना है अपनी को सिंटेक्स। वो बिल्कुल जरूरी नहीं रहता, अपने को कर दीजिए। उसके बिना भी लिख सकते। अपने को जब यूज करना रहता, जब आप क्या बोलते सो इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, जब आपको लिखना रहता, अपन बिना हेड बॉडी टैग्स के ऐसे इसीलिए कर सकते हैं, क्यों बोले तो ये टैग्स अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है, मगर बेस्ट प्रैक्टिस है। ऑप्शनल बेस्ट प्रैक्टिस लगाना चाहिए, मगर अपने को नहीं लगा तो कुछ भी ना करता। जी सर ये लिखने के बाद इसको सेव करना कैसा है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस। जी अच्छा, फिर हम इसको टुमारो ओपन करना रहा तो इसी फाइल से ओपन कर ले सकते हैं। जी जब अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना रहता, वो ड्रैग करना जरूरी नहीं रहता, खाली वो उस पर क्लिक करे तो भी आ जाता। वो जो फोल्डर बना है वहां पे जाके क्लिक करे तो डायरेक्ट ओपन हो जाता। नहीं, खाली आपको VS कोड पे क्लिक कर देना रहता। VS कोड पे। हाँ। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? क्लियर है सर अभी तक। क्लियर है। तो वैसा बोले तो मैं आप लोगों को फॉर्म डाल के वो पूरे क्या बोलते हैं सब कुछ क्या बोलते हैं होमवर्क के क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट्स आपको दे देता हूँ। ठीक है, फिर अपन यहाँ एंड कर देंगे। सर मैंने थोड़े पेज क्रिएट करे सर इससे पहले, एक बार दिखाओ बोलो तो दिखा। हाँ बिल्कुल दिखाइए। सर एक मिनट। अगर हमको खुद की ओन वेब पेज कर बनाना है तो कैसा बनाना वो? ना वो ऐसे HTML से बनाना रहता। हाँ, HTML से और CSS यूज करते हुए बनाना है, राइट? जी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी यूज करना रहता। हाँ। ये थोड़ा प्रैक्टिस करे सर इससे पहले। जी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। एक नहीं दिख मिनट रहा सर। हाँ, आप रिस्टार्ट करिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके ऑन करिए। मेरे पास से आप C++ पाइथन भी बताने वाले हैं क्या? अभी नहीं, वो थोड़ा बाद में अपन जब रिएक्ट ये वो करे बाद में से सी प्लस। अब पाइथन का दिखा सकता हूँ मैं। पाइथन थोड़ा बहुत वो डेटा विजुअलाइजेशन टैब भी है वो। दिख रहा सर। जी नहीं, सर। आप क्या करिए, स्टॉप शेयरिंग करिए फिर रीशेयर करिए। ये शॉप शेयरिंग नहीं आ रहा सर ऑप्शन, थोड़ा हैंग गया। एक सेकंड, मैं आप यहाँ से स्टॉप करता हूँ। मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ, अब आप इसको फिर से शेयर करना चाहते हैं, रीशेयर कर लिया। नहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर। नीचे जूम पे आ जाइए। जूम पे आ रहा हूँ सर, ये स्टक हो गया सर। अच्छा, थोड़ा हैंग हो रहा है शायद अपन। कोई बात नहीं। सर जी ये Node.js भी इंस्टॉल करना है क्या? Node.js को जी इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्यों बोले तो अपने को आगे यूज करना है वो। अच्छा, अभी तो राइट नाउ देयर इज नो यूज ऑफ फॉर दैट। अभी अभी राइट ना नहीं, इंस्टॉल करना बेहतर ओके है, क्यों बोले तो कभी कभार यूज में आ सकता हो। क्यों जब अपने ओके, API आई के जस्ट कनेक्शन। इंस्टॉल इट। जी अभी मैं इंस्टॉल किया था, इसीलिए पूछा मैं किस लिए इंस्टॉल करना है। आप बता रहे थे ना इंस्टॉल करना है बोल के। जब अपन अपना खुद का जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे फोकस करते हैं, तो अपन जावास्क्रिप्ट करने से पहले अपन एक रन टाइम पे फोकस करने वाले हैं उसका Node.js पे।
तो अपने को Okay. Node.js जरूरी Okay, है okay. फॉर टाइम के लिए। फिर उसके बाद जब अपन अच्छा। Next.js React.js डेवलपमेंट करें वक्त जब भी यूज में आता हो। Okay. आप शेयर करिए फिर से वो आप सर सब अभी शेयर हो रहा सर अभी जी शेयर हो रहा सर अभी नहीं हुआ, आपकी वॉइस डबल डबल आ रही है, आप रिजॉइन करिए, रिजॉइन। ओके सर जी any other questions other than that? आपको कुछ भी दिखाना है यहाँ से आप लोग कौन कौन क्या बोलते सो पाइथन ये वो पहले बैकग्राउंड क्या बोलते सो पहले करे थे। आप लोगों को क्या बोलते सो आप लोगों में से किसको भी पाइथन का आइडिया है, पाइथन टैब्लू ये वो? नहीं। अम्म, सर अभी हो रहा सर चेंज अभी तो नहीं हो रहा, आपका डबल डबल दिखा रहा है यूजर। नहीं सिंगल है सर एक ही यूजर है तो हाँ अब करिए, आप स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा मेरे को तो आप लोग दूसरे लोगों को दिखा रहा, आप लोगों को दिखा रहा है स्क्रीनशॉट? नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा नहीं रहा दिखा सर। रहा screenshot। आपको नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अभी सर अब आ रहा, अब आ रहा। ओके थोड़ा प्रैक्टिस करे सर इससे पहले जी HTML टॉपिक्स बोल के लिखिए पैराग्राफ टैग, एम्प्टी टैग्स, लिंक ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, alignment tags, heading alignment and paragraph alignment. Okay. Sure, the correct guardian. उसमें थोड़ा CSS भी करे सर जी नाइस, जबरदस्त है। रोज कैसा है? um, the link image text and link diversity. एक इसको भी भेजना बोले तो कंटेंट के साथ करा सर मैं बोल तो इजीली अंडरस्टैंड हो सो क्या यूज करा इसमें बोल के इंसर्ट इमेज बोल के इसमें क्या क्या यूज करा बोल के यहाँ पर ऊपर दिया सर हेडिंग्स में लिस्ट टैग ऑर्डर टैग और भी है सर थोड़े सर ये HTML भी डाउनलोड कर लेना पड़ता है क्या? नहीं, HTML प्री इंस्टॉल आता हर डिवाइस में। अच्छा अच्छा उतना ही है सर अभी ऐसा तो आप वो क्या बोलते सो आज का भी प्रैक्टिस करे थे?
हाँ आज का भी नहीं करा था वो। आज का नहीं करते, कोई बात नहीं। ये पुराना, इससे पहले थोड़ा अच्छा है जो यूज करा था। इसमें स्क्रोलिंग वाला भी था वो, अभी नहीं मिल रहा हूँ। शायद स्क्रोलिंग था सर, ये सर। अच्छा, जो मैं मार्की टाइप का दिखाया था आज। हाँ आज दिखाया सर। राइट लेफ्ट ऑल यूज करा सर। पूरा HTML है सर, पूरा ये पुश HTML पूरा। आप यहाँ पे मार्क यू टैग यूज कर रहे हैं, राइट? ये आज करा था मार्की टाइप। हाँ आज करे सो है। आप इसमें देख सकते हैं आप ओके ओके। आप स्पीड कैसे अपडेट करे थे इसमें? सर। अच्छा, तो साइज सर कोड भी है, आप देख सकते हैं। आप इसमें आप कुछ इसको स्लो कैसा करे, मेरे को वो देख रहे हैं। अच्छा, स्क्रॉल अमाउंट यूज करें आप। हाँ स्क्रॉल यूज करा। बीच में से भी स्क्रॉल सर कर सकते हैं ना सर, ऐसा। अच्छा, सर इस पे कुछ चेंजेस कुछ भी है तो बोल सकते हैं सर आप, जी। और कुछ। नहीं, जबरदस्त है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी नाइस वेबसाइट। थैंक यू सर, तो थैंक यू। ये इंटरेस्टिंग दिखा आपको, उसको स्पीड कैसा डाले, क्यों बोले तो मेरे को नहीं मालूम था ये पहले स्पीड भी अपडेट कर सकते थे बोल के, ये मार्केट टैक्स का। हाँ सर आप भेजो बोल तो ये भेज दूँ सर आप कोड। सर किनको भी होना बोले तो भेज दूँ सर कोड ये। अच्छा, भी कोई बात नहीं, और स्क्रॉल अमाउंट करना। स्टूडेंट्स को किसको भी होना बोले तो भेज दूँ सर। जी। हाँ, आप ग्रुप में डाल सकते हैं कोड, क्या बोलते हैं, सो ये फाइल डाल दे सकते हाँ किसको भी हैं। डाउट्स है तो भी जी हाँ, डाल देता हूँ सर। लोग ये साइट ला ये लिंक भी दिया सर। जी। आप अच्छा। वो करें, क्या बोलते सो, आई हाँ फ्रेम्स हाइपरलिंक, हाइपरलिंक दिया सर। बनाए आप आई फ्रेम्स? आई फ्रेम नहीं बनाया सर, खाली वही लिंक दिया इसको। तो आई ऐसा फ्रेम फेसबुक क्या में रहता मालूम, अपना जो फेसबुक का लॉगिन पेज है, आप आपके हाँ सर स्क्रीन पे दिखा सकते हो पूरा आई फ्रेम वो। में। अच्छा आई फ्रेम है सर। हाँ फिलहाल तो ये खाली विजिट फेसबुक लॉगिन पेज बोल के दिया सर, खाली टेक्स्ट पे लिंक डाल दिया खाली। जी सर ओपन करे तो फेसबुक ओपन होता, जी। लॉगिन पेज। मैंने ऑटोमेटिकली न्यू टैब में आता, या उसको अपने को नहीं राइट? नहीं नहीं सर, मैं अभी न्यू टैब में दिया, मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में दे रहा हूँ। अच्छा, अपन उसको लेफ्ट क्लिक करें तो? अच्छा डायरेक्ट क्लिक करे तो आ रहा। आप उस पे क्या बोलते सो, जब आप वो हाइपरलिंक बनाते ना, हाँ उसमें सर। एक रहता, अभी पूरा हाँ सर। क्लिक करे तो उन्हें ऑटोमेटिक न्यू टैब में डालता। अच्छा न्यू टैब में डाल सकते थे हाँ, सर। ऑटोमेटिक डालता। उसका कुछ लिंक कुछ राइटिंग करना है सर, ऐसा दिया सर देखो। उसको क्या देना सर, HTML बोल के लिंक में एक न्यू से टैब। मेरे को भी याद नहीं आ रहा वो न्यू टैब का। अच्छा ओके, देखता हूँ एंकर सर, टैब, सर्च सर्च करता हूँ। एंकर टैब है शायद। एंकर टैब। हाँ, एंकर टैग पे कुछ, एंकर टैग पे रहता कुछ, और कुछ। एंकर टैब में टारगेट न्यू करते हैं सर। हाँ, टारगेट, हाँ। यहाँ पर सर हाँ, टारगेट बोल के कुछ रहता वो। टैग टारगेट टारगेट न्यू रहता। हाँ, टारगेट, टारगेट ब्लैंक रहता न्यू। है। न्यू या न्यू ब्लैंक ब्लैंक है। रहता टारगेट न्यू ब्लैंक है सर। है। इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक कुछ रहता हो। न्यू ब्लैंक बोल के सर, ब्लैंक नहीं, खाली ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। हाँ, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर हाँ, अंडरस्कोर ब्लैंक। बस सर। हाँ जी हाँ।
यस सर आ गया सर। हाँ, तो अपन वैसा कर सकते हैं उसको। उसमें डिफरेंट सेपरेट ऑप्शंस रहते हैं ब्लैंक बंद करने। अच्छा ओके, न्यू टैब, न्यू टैब, सेम टैब, वही रहते हैं सेम पूरे ऐसा अभी ऑप्शंस। जो इसमें आ रहे हैं ना सर पूरे ऑप्शन, जी हाँ। न्यू टैब, न्यू प्राइवेट विंडो कुछ। नहीं, मगर उसके ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये टैब में खोलना, न्यू टैब में खोलना रहते हैं थोड़े। ओके, अपन इसका आई फ्रेम भी बना सकते हैं। आई फ्रेम कैसे सर? आई फ्रेम बोले तो वो उसके अंदर आपके वेबसाइट के अंदर ही फेसबुक का पेज आता था, आ जाता नीचे। अच्छा इसके अंदर ही हाँ, उसके अंदर ही फेसबुक का लॉगिन पेज आ जाता। उसका कोडिंग बोले तो क्या देना सर कोड? आपको उसमें VS कोड में खोल लिए तो बेहतर है चाहिए। VS कोड में सर? जी हाँ। उसको फॉर्मेट कर लिए कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट कहाँ सर? कंट्रोल शिफ्ट आर फॉर्मेट फॉर्मेट। कहाँ पर सर? कंट्रोल शिफ्ट भी करिए। कंट्रोल शिफ्ट पी, यस सर। यहाँ से फॉर्मेट लिखिए। फॉर्मेट लिखिए वहाँ पे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट फॉर्मेट। हाँ, और क्या बोलते तो पूरा इंडेंटेशन डालना था उसमें आपके लिए करेक्ट। पूरा डालना सर? हाँ, ऑटोमेटिक उन्हें आपका कोड को उन्हें रिफाइन कर देता। अब आपको क्या ओके, करना रहता, वो ए टैग के नीचे आई फ्रेम लिखिए आप। इधर सर नीचे, इसका नीचे हाँ, उसके नीचे। आई फ्रेम। जी हाँ। इसमें सोर्स नहीं, खाली आप आई फ्रेम वो टैग का हटा दिए। आई फ्रेम लिख के हाँ कंट्रोल स्पेस दबाइए। वो कंट्रोल स्पेस, स्टार्टिंग में एंगुलर ब्रेसेस है तो हाँ वो एंटर। एंटर डाला सर? अच्छा, वो पूरा इरेज कर दी, फिर से आई फ्रेम लिखिए, वो एंगुलर ब्रेसेस मत डालिए। मैंने दिखा दे रहा हूँ, एंटर। सोर्स में ओके। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर www.facebook.com दिखा रहा है ना, ये सोर्स में लिखना है, इसको ऊपर कॉपी हाँ कर। सर, इसको सर? हाँ, ओके सर। फिर सेव कर लेके आपको उसमें खोल के refresh करना है। ब्रेड लेके आओ। एक कुछ मैं ला देता हूँ। अब लाया तो खा तू। अच्छा अब ला दे। ठीक है, बस बोलता हूँ। अच्छा ओके। आपको मैंने दिखा रहा फायरफॉक्स पे, आप यही वेबसाइट को क्रोम पे भी खोल के देख सकते हैं। अच्छा थोड़ा वेबसाइट क्या बोलते तो थोड़े करते, तो थोड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहता है बोलते। इसमें भी रेफ्यूज टू कनेक्ट बोल के आ रहा सर। नहीं, थोड़ा मैं रहता, वो आप HTTPS के साथ करें कॉपी लिंक। कौन सा सर? हाँ उसमें से करा सर एचडी, नहीं क्या रहता है वही। बोले तो, जो व्यू पोर्ट है ना अपना, वो थोड़ा छोटा है, इसीलिए नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इसमें फ्रेम कुछ साइज कर सकते हैं सर इसमें कोडिंग में? हाँ, उसमें भी कर सकते साइज। फ्रेम बॉर्डर कुछ वो बॉर्डर है, खाली वो फ्रेम में जितना बॉर्डर आना चाहिए वो अच्छा बॉर्डर सर। को टॉगल कर दो। अपन कल, और कल ये भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये फ्रेम बॉर्डर में वो फ्रेम भी जो साइज आ रहा ना सर छोटा कर सकते हैं उसका? हाँ हाँ, कर सकते हो, बॉर्डर को छोटा बड़ा कर सकते हो थोड़ा सी तो। कल अब मैं दिखाता हूँ ये पूरा आई फ्रेम्स के बारे में, CSS आई फ्रेम्स का रखेंगे कल। ठीक है सर, थैंक ओके फिर। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अभी यहाँ अपन क्लास एंड करेंगे। देयर आर नो क्वेश्चंस, अपन एंड कर देंगे यहाँ पे। Okay. तो अपन यहाँ एंड कर देंगे। वो प्रैक्टिस का मैं फॉर्म डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ एंड दैट्स ऑल।
Khuda Hafiz everyone. Bye. Okay. Thank you so much for joining. Bye. Sir, thank you. Good night, sir. Good day. You too.